There are two methods, visual methods and second non-visual methods. First, A, visual method. Change of baton is seen by both incoming runner and outgoing runner. So this method is called visual method. In this method, outgoing runner has to see backside while running, so it obstructs the speed of runner. यहाँ पे ये मेथड में ये होता है कि जब बैटन लेके जो प्लेयर आता है उसके आगे वाले प्लेयर जो होते हैं उसको बैटन कहाँ तक पहुँचा, मतलब वो रनर है पीछे जो बैटन लेके आ रहा है वो कहाँ तक पहुँचा वो देखने के लिए उसको बार बार रनिंग करते हुए बैक साइड देखना होता है. सो इस वजह से उसकी जो रनिंग स्पीड होती है उसमें अवरोध ऑब्स्ट्रैक्ट्स होता है. दिस मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग बैटन इज मोर इन यूज. सेकेंड, नॉन विजुअल मेथड. इन दिस रनिंग only the incoming runner can see the action of change. The outgoing runner cannot see it. This method is more useful in 4x100 meters relay. Exchange of baton is done while both the incoming and outgoing runner are running at full speed. There is no risk of reducing speed during exchange of baton. In this method, incoming runner has to be more alert while exchanging baton. यहाँ पे the exchange of baton is done in 3 ways. यहाँ पे एक्सचेंज बैटन एक्सचेंज होते हैं उसको 3 मेथड में, 2 मेथड है विजुअल और नॉन विजुअल. नॉन विजुअल में 3 टाइप्स है, 3 मेथड है. फर्स्ट है कप शेप मेथड, सेकेंड द अप स्विंग मेथड एंड थर्ड द पाम. फर्स्ट, कप शेप मेथड. दिस मेथड इज मोर suitable to school children and beginners. In this method, the outgoing runner runs with his hand near his waist in such a way that the palm is kept in the skyward direction and the thumb is kept in the forward direction. The incoming runner keeps the baton in the open palm of the outgoing runner near his waist. यहाँ पे कप शेप में जो प्लेयर होता है उसके हैंड ऐसे होते हैं और ये उंगली होती है उसकी कमर पे ऐसे रखी होती है, ये उसका कप शेप होता है. सेकेंड पॉइंट, the upswing method. In this method, the outgoing runner extend his right hand with the palm pointing toward the ground and the thumb extended toward the body. Keeping the thumb and the fingers of that hand straight, he makes a shape of inverted V. The baton bearer gives an upward sweep to the baton and places it between the thumb and the fingers of his partner running ahead to him. ये मेथड में द अपस्विंग मेथड है जिसके अंदर इन दिस मेथड द आउटगोइंग रनर एक्सटेंड हिज राइट हैंड विद द पाम पॉइंटिंग टुवर्ड द ग्राउंड. यानी उसके जो हैंड होते हैं ये पाम होती है वो ग्राउंड की ओर होनी चाहिए और जो प्लेयर होता है मतलब आउटगोइंग प्लेयर होता है उसको ऐसे ये बैटन पकड़ा हुआ है तो उसकी जो हाथ और उंगली होती है उसके अंदर ऐसे रखता है और उसकी जो हैंड स्ट्रेट होता है ही मेक्स द शेप ऑफ इन्वर्टेड वी. यानी उसके हैंड ऐसे होते हैं यानी इन्वर्टेड वी शेप बनाता है. थर्ड पॉइंट, द पाम हेल्ड स्काईवर्ड्स मेथड. स्काईवर्ड्स मेथड में हमारी कप शेप में ऐसे होता है हाथ. सेकंड है हमारा अप स्विंग जिसमें हमारे हैंड ऐसे होते हैं और ये थर्ड है द पाम हेल्ड स्काईवर्ड्स यानी हमारे हैंड
ऐसे होते हैं. In this method, the outgoing runner extends his arm backwards in such a way that the palm faces the sky. The thumb of the hand extended backwards point towards his body. The fingers are straight and the thumb is free and away from the fingers. यानी ऐसे हमारा हैंड ऐसे होता है. The incoming runner gives a downward swings to the baton and places it on the extended palm of his partner. First runner in relay race takes crowd start. He keeps baton in his left hand. He will pass the baton to second runner in his right hand. Second runner while running will exchange the baton from his right hand to left hand and then he will pass to the third runners in his right hand. This way all the runners will exchange the baton. The second, the third and the fourth runner may run 10 meters behind the first line of baton exchange zone toward the starting line. But baton exchange must be done in baton exchange zone only. जस्ट रिमाइंडर है कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं स्किल्स ऑफ रिले रेस है, जिसमें देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स इन 4x100 मीटर रिले, जिसमें हमने स्टार्ट पढ़ा, सेकेंड पढ़ा बैटन एक्सचेंज के शेप टाइप्स पढ़े, कप शेप, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तीनों स्किल्स पढ़े. और हमारा थर्ड पॉइंट है फिनिश. The fourth runner of the relay team will cross the finish line with maximum speed like short distance running with baton in hand. All competitors in relay race competition should keep in mind a few important rules which are as follows. First, while taking a start, any part of his body or baton should not touch in his on lane or ahead of starting line. यहाँ पे जब स्टार्टर फर्स्ट 4 रनर होते हैं रिले रेस के अंदर, जिसमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग लेता है बैटन के साथ, उस रनर को ये ध्यान रखना होता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट या तो बैटन स्टार्टिंग लाइन को टच नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, इफ कंपिटिटर्स यूज द स्टार्टिंग ब्लॉक्स हिज स्टार्टिंग ब्लॉक अगर कोई कंपिटिटर्स यूज़ करता है तो ही स्पाइक्स और बूट्स मस्ट हैव टच्ड द ग्राउंड. स्टार्टिंग ब्लॉक को यूज़ करता है स्टार्टर, तो उसके स्पाइक्स ऐसे बूट्स आते हैं और बूट जो पहना होता है बूट्स वो ग्राउंड को टच होने चाहिए. द कंपिटिटर शुड स्टार्ट रनिंग ओनली आफ्टर द साउंड ऑफ द क्लैपर इज हियर्ड. यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट होता है ऑन योर मार्क सेट एंड गो के टाइम क्लैपर की आवाज़ सुनाई देती है. उसके बाद में जो रनर होता है कॉम्पिटिटर्स होता है उसको रन स्टार्ट करनी होती है, और उसके पहले अगर वो स्टार्ट करता है तो वो फाउल होता है. फोर्थ, द लेंथ्स ऑफ द ट्रैक ऑफ अ रिले रेस टू बी टेकन बाय टीम्स आर डिसाइडेड बाय लॉट्स. In relay competition, the runner has to carry baton only in his hand. यहाँ पे उसको अपने हाथ में ही बैटन को पकड़ना है, अपने पॉकेट में या कमर पे कहीं पे वो रख नहीं सकता. 6, बैटन मस्ट बी एक्सचेंज ओनली इन द बैटन एक्सचेंज जोन. जो हमें बैटन चेंज करना है उसका एक एरिया डिसाइड किया होता है एक्सचेंज जोन, उसी एक्सचेंज जोन में उनको बैटन चेंज करना होता है. If the baton falls down while changing, it must be picked up by the runner who has dropped it. He cannot take the help of any other runner. यहाँ पे बैटन लेके जो प्लेयर जाता है उसके हाथ में से बैटन गिर जाता है तो वही प्लेयर बैटन उठाएगा. उसके दूसरा पार्टनर हो या बाजू के लेन वाला कोई भी प्लेयर उसको ये बैटन उठाने में हेल्प नहीं करेगा. 8, in 4x100 meter relay race, all the 4 runners of a team have to run the entire distance in their own lane.
यहाँ पे जो भी 4x100 मीटर्स की जितनी टीम है उनको जो लाइन दी होती है तो उसके अंदर चारों चार जो मतलब 4 प्लेयर होते हैं उनको अपनी लाइन में ही पूरा डिस्टेंस कवर करना होता है। इन रिले रेस मेंबर्स ऑफ द टीम में डिसाइडेड द ऑर्डर ऑफ रनिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। यहाँ पे हम हमारा लेसन नंबर 8 रनिंग चैप्टर यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको ये हमारा लेसन नंबर 8 रनिंग चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।